ने अपनो प्रयोजन के में या प्रयोजन सु ये कार्य करनो है ये जानने वाला अधिकारी है, तो वो अधिकारी भयो प्रमाता, वन हु वांट्स टू नो, वन हु वांट्स टू लर्न, वन हु वांट्स टू गेट इनटू द बिजनेस, तो ये प्रमाता है। और प्रमाता को ही दूसरा शेड है ज्ञाप्य, यानी जाकू सिखानो है, जो सीखने की एलिजिबिलिटी रख रहे हो, द सब्जेक्ट हु इज टू बी टॉट, व्यक्ति, सब्जेक्ट यानी व्यक्ति कह रहे हो यहां, तो यही ज्ञाप्य है। और जो प्रमा और प्रमाण है वो ज्ञान है। हमको प्रमाण के आधार पे जो जानना है वो दोनों ही विषय हमारे लिए ज्ञान के विषय है। बहुत स्थिर कर लीजिए यह बात। जो अधिकारी है जाने अपनो प्रयोजन जान लियो है कि मुझको कृष्ण के लिए जीना है, या प्रयोजन को जान के जो अधिकार सेवा करना चाह रहे हो वो अधिकारी है, तो प्रयोजन सहित जो अधिकारी है वो प्रमाता है, वो ही ज्ञाप्य है। और प्रमा सहित जो प्रमा यानी प्रमाण सहित जो प्रमा है, प्रमा शब्द में बाद में लिख दो, पर पहले याद ही लिखो कि ऊपर विषय पहले आ गया, विषय ही प्रमा है हमारा। तो विषय और संबंध के साथ हमने प्रमा और प्रमाण, तो प्रमा और प्रमाण ही हमारे लिए ज्ञान है। फिर सु समझ लो बराबर, देखो बराबर रिज कर ली जमाते, अधिकारी और प्रयोजन हमारे लिए प्रमाता के ब्रैकेट इज इक्वल टू प्रमाता, अधिकारी और प्रयोजन बराबर प्रमाता, અને વિષય અને સંબંધ બરાબર પ્રમાણ અને પ્રમા। આપણે પ્રમાણ પછી બોલીએ છે, ઠીક છે। તો પ્રમાતા આ ગયો, પ્રમાણ આવી ગયું અને પ્રમા આવી ગયું, હવે શું બાકી રહ્યું? પ્રમાતા। प्रमेय तो तब आवेगा ना कि जब प्रमाता और जो वाको ज्ञापक है प्रमापक है वो दोनों आ जाएंगे। अभी हमें पांचवा एक ऐड हो रहा है ना, पांचवा एलिमेंट प्रमापक नहीं है, एलिमेंट हो रहे बताने वाला ज्ञापक। वो चार शब्दों को रिलेशन तो यार पूरा होगा ना घनश्याम भाई, एक मिनट आप कंफ्यूज मत करो। आज ज्ञाप्य ज्ञापक प्रतिपादक वगैरह में जो समझा गया ये मैं आपने समझा भी दिया, पर बेसिकली आपके पास चार शब्द था ना, प्रमाता, प्रमेय અને પ્રમાણ, પ્રમેય અને પ્રમાણ, ये चार હતા ना। तो प्रमाता तो जीव છે, अधिकारी जीव જે ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થવા માંગે છે, અને પ્રમાણ જે છે એ મહાપ્રભુની વાણી છે, ઠીક છે। અને પ્રમેય છે ઠાકોરજી અને સેવાનો વિષય અને જગતનો વિષય અને જીવનો સ્વભાવ। આપણે જગતને બ્રહ્માત્મક જાણી લઈએ અને આપણે પોતાના જીવના સ્વભાવને જાણી લઈએ, અને આપણે જેની સેવા કરવી છે એ સેવા સેવીને જાણી લઈએ, અને સેવા એ સેવીની સેવા કેવી રીતે કરવી એને જાણી લઈએ। આ બધું આપણા માટે શું છે? પ્રમેય છે ને। આ અને જે વખતે જાણી લઈશું તો જે જાણેલું છે એ પ્રમા છે। આપણે પ્રમાતા છીએ, મહાપ્રભુની વાણી પ્રમાણ છે, અને જીવ બ્રહ્મ જીવ જગત અને સેવાનો પ્રકાર એ પ્રમેય છે, બરાબર। અને જે જાણી લીધું છે આપણે તે પ્રમા થશે જ્યારે આપણે જાણી લઈશું। હવે ચાર એલિમેન્ટ તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયા ને। હવે જણાવનારા આત્મી અહીંયા રહી ગયો ને। અભી જે સંબંધોમાં આ જ્ઞાપક પ્રાપક પ્રયોજક વગેરે શબ્દોથી કહેલો છે એ પાંચમો એલિમેન્ટ છે, એ છે પ્રમાપક, જે તમને પ્રમાણ કરા જ્ઞાન કરાવી રહ્યો છે એને। अभी तक गुरु इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, अभी तक तो ये चार प्रयोजन ही चल रहे हैं ना। याद ही आप देखो नीचे ये ज्ञाप्य और ज्ञान ये बनने नो जो रिलेशन है ये एरो जई रहा है ज्ञापक में। ज्ञापक, प्रापक, प्रयोजक, प्रेरक, पोषक, रक्षक, भर्ता, अध्यापक, दर्शक, श्रावक, ये બધા શબ્દો અહીંયા લખી શકાય। जब तुमको समझा ज्ञान कराने वाला
જ્ઞાન કરાવી દે કે તમને જે જ્ઞાન થયું છે એનું નામ પ્રમા, એનું નામ પ્રમા. તમારા જે પદ્ધતિ જેમાં તામસ પ્રમાણ રાજસ ગુણ સમજો ને એ જ્ઞાનનું એક પ્રમાણ બીજું નામ છે કૃષ્ણનું સ્વરૂપ સમજે છે જ્યાં નામ એ છે એ અલ્ટિમેટલી એ છે ને કૃષ્ણનું સ્વરૂપ, કૃષ્ણની સેવા કરનારાનું સ્વરૂપ, કૃષ્ણની સેવા બતાવનારાનું સ્વરૂપ અને કૃષ્ણની સેવાનું સ્વરૂપ અને કૃષ્ણની સેવા જ્યાં થઈ રહી છે જગતમાં એનું સ્વરૂપ એ તો જાણવું છે. એટલે એ સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયું ને એ ટોટાલિટી થઈ ગયું ને ખ્યાલ આવી ગયો. એટલે પ્રમાતાએ પ્રામાણિક રીતે પ્રમેય જાણવા પછી પ્રમાની ઉપલબ્ધિ માટે પ્રમાપકની જરૂરિયાત એને પડશે. જ્ઞાપક અને એને એ જ્ઞાપક એ ગુરુ શ્રી મહાપ્રભુએ બતાવેલા લક્ષણ પ્રમાણે એને એક ગુરુ શોધી લેવા જોઈએ જે પોતે કૃષ્ણ સેવામાં પારંગત હોય, જેમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ માત્સર્ય જેવા અવગુણો ન હોય અને જે શ્રીમદ ભાગવત એટલે કે શાસ્ત્રનો જાણકાર હોય અને જે નર હોય, પુરુષો હોય અને પાંચમું જે આ ચારે રૂપના અંદર રહેલું છે કે તે મહાપ્રભુનું વંશજ. દરેક મહાપ્રભુના વંશજ માટે આચાર્ય થવું જરૂરી નથી, પણ કોઈ પણ પુષ્ટિ માર્ગના આચાર્ય માટે મહાપ્રભુનું વંશજ હોવું જરૂરી છે. એટલે કૃષ્ણ સેવામાં પારંગત હોય, દંભ વગેરેથી રહિત હોય, પુરુષ હોય એટલે કે નર હોય. તેથી સ્ત્રીઓને આપણા માર્ગની ગુરુ નથી ગણવામાં આવી. તેથી બેટીથી કે એવા કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે ગુરુ સ્થાને ન ગણી શકીએ, વહુજીને કે એમને. અને આચાર્ય અને ગુરુને આપણે આ બધા સંદર્ભોમાં ઇન્ટરચેન્જેબલ વર્ડ્સ માનવા જોઈએ, સમાનાર્થક. બહુ એના કન્ફ્યુઝન ન જોઈએ. જે આચાર્ય હોય એને જ ગુરુ બનવાનું સામર્થ્ય બની આવી શકે છે. આપ સમજે નહીં એ આચાર્ય મેં પારિભાષિક અર્થમાં શું સમજાવ્યું આપને? આ માર્ગ પ્રવર્તન, આ માર્ગ પ્રગટ કરવાનો જે મૂળ આચાર્યત્વ છે એ ત્રણમાં છે. એ તો સાતમાં નથી. એ સાતમાં જે આચાર્યત્વ છે આ માર્ગને પ્રગટાવેલા માર્ગને સમજાવવાનું આચાર્યત્વ છે, પણ પ્રગટાવવાનું આચાર્ય નથી. आ कॉर्नर जो सेक्शन है, ये सारे सेक्शन को मेरा मतलब प्रयोजन सिर्फ इतना है कि ये अनुबंध चतुष्टय समझने में अपन को दो बात की या सारी चीज को सार जो है वो दो है. एक तो हमको अपनी स्वभाव को परीक्षण करके एलिजिबिलिटी नक्की करनी चाहिए कि हम अधिकारी है कि नहीं, और अगर हम अधिकारी हैं पुष्टि भक्ति मार्ग पे चलने के, तो हमको पुष्टि भक्ति मार्ग बताने वाला कोई सच्चा गुरु चाहिए, बाकी खोज करनी चाहिए. और मैं भूतकाल की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वो चर्चा का विषय भी नहीं है. मैंने कल भी ये समझाया था कि आज सब लोग समझ प्रधान है, कोई अंगूठा छाप बैठे नहीं. आज तुम शाक भाजी लेने जाओ तो शाक भाजी भी तुम कोई लारी पे बासी शाक भाजी लेके नहीं आओगे. कपड़ा तुमको खरीदना हो 10 दुकान पे जाओगे. तुमको डॉक्टर को दिखाना हो तो तुम पहले अपने फैमिली डॉक्टर से पूछोगे तो कौन सा डॉक्टर रिलायबल है. ये सब कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर है. जब तुम एक सही अच्छो डॉक्टर खोज सको, जब तुम सही कपड़ा खरीदने की दुकान खोज सको, जब तुम सही गहने खरीदने के कोई स्थान तुम शोध सको कि जहां तुमको अगर ज्यादा से ज्यादा चूनो लगाने में आवे तो 23.5% लगाने में आवे कैरेट के हिसाब से. तो यानी कैरेट क्या हुआ कि 24 कैरेट के हिसाब से. तो ये सब चीज जब तुम सोच सको
तो ये बात कभी भूले चूके भी मत कहियो कि अમને तो खबर ना पड़े, अમને तो પેલા ભાઈ લઈ ગયા કે અમને તો પેલા બેને કહ્યું કે ત્યાં જાઓ એટલે ત્યાં જઈને અમે તો દીક્ષા લઈ લીધી. ये बात मेरे से कहियो मत कर. सब लोग होशियार हो. मैंने कल ही ये बात स्पष्ट कर दी थी. आजकल व्यक्ति बिना पढ़ो लिखे हो सके पर होशियार नहीं हो ये संभव नहीं. ये मेरा आज को नहीं 40 वर्ष को मेरा अनुभव है. इन 40 वर्ष में, जबकि ये सारी चीज इन 6-10 वर्ष में ज्यादा बढ़ी. 40 वर्ष से मैं अपना देख रहा हूं, मेरे स्टाफ में और मेरे संग रहने वाले लोगों में बिल्कुल अंगूठा छाप, लेकिन अपने काम को निकालने में उनको जितनी होशियारी हो है, दे आर हेडमास्टर्स. They know how to exploit. यानी हमेशा दो बात को लेना जरूरी है. भले हम 10 साल से सेवा कर रहे हैं, पर मैं फिर आज कह रहा हूं कि आज अपना आत्मालोचन करो. यह विषय को समझ के, ये सेवा के सारे विषय को समझ के फिर से एनालिसिस करो कि वेदर यू आर द राइट रेसिपिएंट और नॉट, वेदर यू हैव द राइट एलिजिबिलिटी और नॉट. तो अपने स्वभाव के विश्लेषण से अपनी अधिकारिता और मार्ग बताने वाले गुरु को परिचय, ये दो बात अगर अपन नहीं शोध सके तो अपनी यात्रा वो अंधे ठिकाने की यात्रा हो जाएगी, लक्ष्य की यात्रा नहीं है. अपन 4:30 बजे बैठे, ऑलरेडी 3 बजे आए. बात बतावे आपके पास नहीं हो तो मैं खाली यहीं से कह रहे हूँ. मैं बोल रहे हूँ या संदर्भ में अब समाप्त कर रहे हैं अपन. जो भक्तिवर्धिनी का विषय है, तो आपको अपन ने कल देखियो कि बाह्य सेवा को प्रकार, अंतर सेवा को प्रकार और नाम सेवा को प्रकार. तो बाह्य सेवा को प्रकार वो आप ये चार्ट निकालो. पचास और 51 कारिका है, आपको संदर्भ लिख रखो. आप लोगों के पास ब्रजभाषा का अनुवाद है, जिनके पास नहीं है उनको ले लेना चाहिए. यहाँ की भी एक अपने मार्गी पुस्तकें मिले ना, वहाँ पे भी शायद मिल जाएगा आपको. शास्त्रार्थ निबंध कारिका 50 और 51. तो महाप्रभु ये बात समझा रहे हैं हमें. ब्रह्मानंदे प्रविष्टानाम आत्मनैव सुख प्रमा संघातस्य विलीनत्वात् भक्तानां विशेषतः सर्वेन्द्रियैस्तथा च अंतःकरणैः आत्मनापि ब्रह्मभावात् भक्तानां ग्रह एव विशिष्यते. कल आपकी एक शंका थी कि नहीं, वो वही पे समझाना है. पहले दे दो फिर मैं करूँगा. એટલે ત્યાગ સ્વતઃ થઈ જાય છે. ત્યાગ કરવું નથી પડતું, અને ત્યાગ કરી અને એ પોતાની વ્યસન અવસ્થાથી સર્વાત્મ ભાવ અવસ્થાની પ્રાપ્તિ માટે એ પ્રયાસ કર્યા કરે છે. એટલે પ્રયાસ થયા કરે છે એવું કહેવું જોઈએ. અને એના માટે વાર્તામાં શ્રી નરહરિ સંન્યાસીનો પ્રસંગ આપણે ખ્યાલ રાખવાનો, એટલે એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે એમાં શું વ્યવસ્થા બતાવી છે શ્રી મહાપ્રભુએ. પછી અતૃણ બીજ ભાવ વાળો છે, એને શ્રી મહાપ્રભુએ સમજાવ્યું કે અવ્યાવૃત ભજે કૃષ્ણ પૂજ્યા શરણાદિ. અવ્યાવૃત હોય તો ઘરમાં રહીને અને ભગવત ભજનાનુકૂળ જે ઘર છે, એટલે જેમાં સેવા અનુકૂળતાથી થઈ શકે
એવા ઘરમાં રહીને ત્યાં અને પૂજા શબ્દ અને પૂજા શબ્દનો કાલે મેં અર્થ બતાવ્યો, જે જ્યારે પ્રગાઢ પ્રેમ સહિત જ્યારે પરિચર્યા થાય એનું નામ સેવા છે, અને મહાત્મ જ્ઞાન પૂર્વક સુધી જ્યાં સુધી સાધન અવસ્થા ચાલતી હોય તે પૂજાની વાત છે. એટલે પૂજા, શ્રવણ, મનન, ચિંતન, કથન, જે કાલે બધો પ્રસંગ આપણો આવી ગયો તે પ્રમાણે એ પોતાનું નિર્વહન કરે. અને અહીં આપની એક શંકા હતી કે એના માટે ત્યાગ કેમ નથી બતાવ્યો. એના માટે ત્યાગ અપેક્ષિત નથી, કેમ કે એને એના ઘરમાં જ એક ગોલોક કે વ્રજવત સ્થિતિ એની સિદ્ધ થઈ જાય છે, જ્યારે એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે શ્રી મહાપ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણે પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરી શકતા હોય તો. અને એ સંદર્ભમાં હું અહીંયા સમજાવતો હતો. શ્રી મહાપ્રભુ અહીંયા સમજાવે છે કે બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિ માટે જે લોકો, એટલે મોક્ષ રૂપી ફળ માટે જે લોકો ભક્તિ કરતા હોય છે, તો એમનો ફળ જે મોક્ષ રૂપી બ્રહ્માનંદ રૂપી છે, એટલે મોક્ષની અવસ્થામાં બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિ થાય. તે સંદર્ભમાં શ્રી મહાપ્રભુ સ્પષ્ટ કહે છે કે સંઘાતસ્ય વિલીનત્વાદ ભક્તાનાંતો વિશેષતા. તો એમાં સંઘાતની એટલે દેહ, પ્રાણ એ બધા ગયા પછી એટલે જીવાત્મા એનું ભગવાન કૃષ્ણમાં વિલીન થઈ જાય, એટલે સાયુજ્ય મોક્ષ થઈ જાય, એ બ્રહ્માનંદ. यहाँ तक की बात मेरी स्पष्ट होगी ना? ब्रजभाषा में मैं समाप्त कर दूं. तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो भक्ति रूपी साधन कर रहे हैं, ऐसे लोग जो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति सु जो मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो मोक्ष तो संघात के पश्चात जीवात्मा को, जीव तत्व को परमात्मा में विलीन हो जाना है. तो वह सबकी तुलना में श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वेंद्रिय, अपनी समस्त इंद्रिय की जो 17 वृत्ति बताई मैंने कल को, 4 है तुम्हारे, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण की वृत्ति, देह की वृत्ति, आत्मा की वृत्ति और प्राण की वृत्ति, ये 17 वृत्ति को विनियोग जहां जीवंत रूप में श्री कृष्ण में हो रहे हैं, ऐसी जो फलात्मिका भक्ति है, जहां भक्ति को लक्ष्य मात्र स्वरूप सेवा है और जहां भक्ति को फल भी भक्ति ही है, यानी जहां सेवा को फल भी सेवा ही है ना? तो दो बात अलग हो गई. एक भक्ति मोक्ष के लिए की जा रही है और एक भक्ति भक्ति के लिए की जा रही है, यानी श्री कृष्ण के स्वरूपानंद के लिए. आपने बात है. तो वह बात को समझा रहे हैं श्री महाप्रभु के वह जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए भक्ति की जा रही है, ऐसे जो ब्रह्मानंद रूपी फल को, यानी वहां जो मोक्ष रूपी फल है और यहाँ जो केवल भगवत स्वरूपात्मिका जो भक्ति की जा रही है, वो भक्ति रूपी साधन. यानी पहले दो चीजें को समझो आप. जब अपन कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए जो भक्ति की जा रही है, तो वहां ब्रह्मानंद फल है ना, और यहाँ स्वरूप के यानी स्वरूप निष्ठासु जो भक्ति की जा रही है, वहां में स्वरूप निष्ठा तो फल है और भक्ति वह को साधन है. तो श्री महाप्रभु समझा रहे कि ऐसे ब्रह्मानंद रूपी फलसु पुष्टि भक्त की करी गई जो भक्ति है, साधन रूपा भक्ति है, वो साधन रूपा भक्ति भी वह फलसु ज्यादा श्रेष्ठ है. ब्रह्मानंद के लिए जो व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्मानंद रूपी फल के लिए फलसु भी ज्यादा पुष्टि भक्त की साधन रूपा भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है. यानी ब्रह्मानंद प्राप्त करने वाले को फल और पुष्टि भक्त की को साधन, वो दोनों समकक्ष है. समकक्ष नहीं बल्कि वो साधन ज्यादा श्रेष्ठ है. बात समझ में? वही बात कुछ महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है कि वो तो केवल जीवात्मा के रूप में विलीन हो जाएगा भगवत तत्व में, आत्मस्वरूप, और यहाँ सारी समस्त इंद्रियों के संग और अंतःकरण इत्यादि सहित ब्रह्म भावात्म भक्ता नाम ग्रह एवं विशेष. यहाँ तो वो परमानंद को अनुभव करेगा भगवान के साथ देह इंद्रिय सहित. याद ये श्री महाप्रभु ने कंक्लूजन दिया, फाइनल को कंक्लूजन बता रहे कि भक्ता नाम जो या प्रकार की पुष्टि भक्ति जो है, ऐसे भक्त वो ब्रह्मानंद रूपी फल सु भी उनकी भक्ति साधन रूपा भक्ति ज्यादा प्रबल है
और यानी ग्रह एवं विशिष्य, वो सब कुछ त्याग के भी जो उनको फल है वो पुष्टि भक्ति को साधन करने वालों और घर में रहने वाले व्यक्ति के साधन सुभी निम्न कोटि को है। तो ग्रह एवं विशिष्यते, तो यहां ऐसे भक्त की घर में ही स्थिति में कोई आपत्ति नहीं है। वो किसी मुख्य रूप में पहुंच जाए घर में, फिर इनसे भी त्याग हो ही जाए, नहीं, वो करे नहीं ठीक। बेसिकली आप समझो कि जो बीज भाव दृढ़ के बाद जो त्याग की बात करी जा रही है ना घनश्याम भाई, वो भी एक अपवाद है। आपको समझ में, जो पहली बात है जो यहाँ पहला अधिकारी बताया जा रहा है कि दृढ़ बीज भाव जो ग्रह त्याग पूर्वक है, ये भी एक अपवाद है। और वाक्य बाद जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो भी नियमित स्वरूप नहीं है, रेगुलर फॉर्म नहीं है, परंतु जीव स्वभाव भेद के कारण अपन को ये सारा चित्रण समझना पड़े। जीव स्वभाव भेद के कारण ये साधना पद्धति में भी थोड़े सूक्ष्म भेद आ रहे हैं। या में अगर कोई नियमित स्वरूप कहीं भी एक रेगुलर फॉर्म अगर है तो वो घर में रह के सेवा करना, आपको समझ में आया। और यह बात को और गंभीरता से समझो तो व्रज के कोई भक्तन को, ब्रजवासी को कहीं कोई को भी ग्रह त्याग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जागृष्टसु मिलने के लिए ग्रह त्याग करने की अपेक्षा अन्य को पड़े, वो कृष्ण स्वयं घर में आके मिल रहे हैं तो ग्रह त्याग को कहां प्रसंग बने? ग्रह त्याग को प्रसंग, यानी घर में रह के जो सेवा सिद्धांत पूर्वी का जो सेवा है और वह सेवा से उत्तरोत्तर स्नेह आसक्ति व्यसन इत्यादि की जो स्थिति सिद्ध हो रही है वो अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड है और वो परिपूर्ण है, वो आत्मनिर्भर है, वो दूसरे पर निर्भर नहीं कर रही है। जहां त्याग पक्ष है वहां कहीं कोई अपवाद के कारण वो ग्रह त्याग और ग्रह त्याग की बात की जो विकास की जो पद्धति है वो बताई जाए। देखो, एक सामान्य बात आप समझो, यह बात को मैं और आगे समझाऊंगा। एक परिपक्व और जो नियमित स्वरूप सुभक्ति को जीने वाला जो भक्त है ना, वो ठाकुर जी की सेवा जब करे वो, तो ठाकुर जी की सेवा के अवसर के समय वह को संयोग है और अनवसर के समय में वह को विपरीत है। एक बात समझो आपको, हमेशा आप शब्द को वाक्य संदर्भ के साथ समझने को प्रयास करोगे तो कहीं भटकाव नहीं आएगा। मैंने ये बात आपको कल भी समझाई थी कि भारतवर्ष में जो वर्ण और आश्रम व्यवस्था है वह आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रम बताए गए, 4 वाक्य बताए गए, 4 ठिकाने बताए गए। एक ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है और वानप्रस्थ है और संन्यास है। तो अगर जैसे श्री महाप्रभु ने गृहस्थ होते भय भी चारों आश्रम को निर्वाह किया ना, तो श्री महाप्रभु ने संन्यास दिया कि नहीं हो, तो वो श्री महाप्रभु ये समझाना चाह रहे, यद्यपि श्री महाप्रभु ने ये बात स्पष्ट कही है कि कलयुग में संन्यास की व्यवस्था उचित है ही नहीं, वो अपन को भटकाने वाली व्यवस्था है। तथापि कोई व्यक्ति को ऐसो दृढ़ कहीं आग्रह हो कि नहीं मैं आश्रम व्यवस्था को संपूर्ण निर्वाह करूंगा, तो वह स्थिति में श्री महाप्रभु समझा रहे हैं कि अगर त्याग करना भी है तो वो त्याग के हेतु से नहीं होना चाहिए, विरह के अनुभव के हेतु से होना चाहिए। उन चीज को थोड़ा डिफरेंस करो तो आपके समझ में आ जाएगा। तो याद इस तरीका से व्यावृत्त पक्ष को श्री महाप्रभु ने समझाया कि तू अपने मन को अंतःकरण को चित्त को श्री हरि में लगा
परिया को उदाहरण जैसे कल मैंने समझाया तो आपको, भैया जी गोकुल कब चलोगे, वो व्यावृत्ति के कारण उनने एक व्यक्ति रख लियो कि जो उनको क्षण थोड़े देर में ये याद दिलावे कि गोकुल चल, और गोकुल चलने की जब स्मरण हो तो वह वक्त वो लीला के चिंतन में अपने आप में तन्मय हो जाते थे। ये अपने वार्तान को क्रम बता रहे हैं। तो वो जो श्रवण परायण है, वाक्य दो स्थिति बनी, एक तो वो जात व्यसन हो गए और एक अजात व्यसन है। अब जाकू व्यसन सिद्ध हो गए है, वाकु श्री महाप्रभु कह रहे कि तू आंतर निष्ठा सहित और घर छोड़ के और भगवत लीला के स्थान पे भटक। आपको ख्याल है? तो ये वो अंतर भजन को प्रकार है, भगवान श्री कृष्ण को अंतःकरण में पधरा के अंतरात्मा में और केवल कृष्ण के हेतु से और भगवत लीला के स्थान पे घूमना चाहिए। जाको मैं आपको अक्सर समझाऊं कि ये जो अपने यहाँ की व्रज परिक्रमा, व्रज यात्रा जो शुरू भई, वो या परिक्रमा या संदर्भ के आधार पर शुरू भई है और आज बिल्कुल विकृत रूप है। आज यात्रा में जाने से अपने पुष्टि मार्गीय जीवन को पुण्य नहीं बढ़े बल्कि अपन को पाप लगे। ये यात्रा अपने लिए बाधक है, साधक नहीं है। यदि कोई भी समझदार पुष्टि मार्गीय वैष्णव को ये यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्या करें? जो आज फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्मेशन है जो क्या ना, तो अब ये जो यहाँ जात व्यसन की जो बात है, यहाँ अंतर भजन है कि भगवान कृष्ण को अंतःकरण में अंतरात्मा में पधरा के और विरह की अनुभूति के लिए विचरण करना निरुद्देश्य, कोई उद्देश्य वगैरह, जो भगवत लीला के स्थल है उन स्थलन में जाके श्रवण मनन चिंतन कीर्तन इत्यादि करते हुए भगवत लीला को अनुभव करते रहे, ये वो प्रकार है। हाँ, आमरण यावत जीवन। और ये प्रकार जो है ग्रह सेवा के प्रकार से बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन। तो ये वो प्रकार आया। और अजात व्यसन जो है वहां को फिर एक्सटेंशन बताया आप देखो, वो भगवतीय संगी है। तो वो भगवतीय संगी होके या तो कोई भी भगवत भक्त के जीवन को, बाकी घर को अंग बन जाए, पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज हाउस होल्ड, और बाकी सेवा को अंग बने और सेवा इत्यादि में प्रवृत्त हो जाए, या केवल कथामय जीवन जिए। ख्याल आया? तो जो कथामय, जो बाहर एक नाम को प्रकार है, तो नाम से नाम भक्ति को, वो ये प्रकार है। यानी नंबर 5 जो है वो कथा भक्ति है, वो कथा भक्ति। आपको ध्यान आई? एक त्याग पक्ष, दृढ़ बीज भाव की, अदृढ़ बीज भाव जो है वहां में दो पक्ष, अव्यावृत और व्यावृत। वहां में अव्यावृत जो है वो घर में रह करके सेवा करे और स्नेह आसक्ति व्यसन इत्यादि में वो उत्तर वृद्धि के लिए तरफ जाए, और जो यानी व्यावृत है, वो व्यावृत के फिर दो पक्ष निकले, जहां में एक धीरे धीरे प्रगति करते हुए जो व्यसन की कक्षा में पहुंच जाए वहां को त्याग कर देना चाहिए। और यह स्थिति में वहां को त्याग करने की जो अवस्था है वो पहले नंबर से मिल जाएगी। जो पहले पक्ष में त्याग बताया वो और ये त्याग सम कक्षा जाएंगे। और बाकी बात जो व्यावृत जो पक्ष है, वह व्यावृत पक्ष में जो अजात व्यसन है, वो अजात व्यसन श्री महाप्रभु आदेश दे रहे हैं कि या तो तू घर छोड़ने के बाद कोई भगवत भक्त के परिवार को अंग बन जा, और बाकी आंतर या बाह्य जो भी परिचर्या टहल कर सकते हो तू कर, और बाकी सेवा को अंग बन जा। बाकी सेवामय जो वह को जीवन है, वह सेवामय, सेवा प्रधान जीवन को तू अंग बन जा, तो तेरी भी वो सेवा हो जाएगी। और अगर वो संभव नहीं हो तो वह स्थिति में तू केवल वाक्य संग, कथा इत्यादि को संबंध रख के अपनो भगवत कथा के श्रवण मनन चिंतन कथन से अपनो जीवन निर्वाह कर। अब मेरी बात ये कंप्लीट ध्यान में आ गई ना? आज की व्यवस्था से जागृत मां अजात व्यवस्था आदमी परिस्थिति में प्रस्तुत हो, तो पक्षी से आदमी परिस्थिति मां भगवान, मैं शॉर्ट में सबक कर दूंगा आपको। आज 28 फरवरी 2008 की बात, ठीक है? आज हो गया कि नहीं? आप चाहो तो टाइम कैसा पकड़ देखिए। या पॉइंट पे मैं आपको ये कह रहे हूं कि अब उस एक साधक के लिए, पुष्टि मार्गीय साधक के लिए एकमात्र रास्ता जो है भक्ति मार्गीय के लिए, वो है घर में रह के ठाकुर जी की सेवा। और अगर
अगर वो संभव नहीं है कोई कारण से, तो कथामय जीवन सु, व्यक्तिगत रूप में कथामय जीवन सु घर में रहते हुए अपना निर्वाह करें। और तीसरा विकल्प ये है कि शरण मार्ग की पद्धति अपनाएं। बाकी अब कोई रास्ता सेफ नहीं है। मैं आपको छोटा सा प्रश्न करूं, अगर कोई व्यक्ति जो घर में सेवा के बगैर रह नहीं सके और घर में सेवा कर नहीं सक रहे हो, ऐसा व्यक्ति समझो आप सेवा कर रहे हो ना, दोनों पति पत्नी, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आवे तो आप वहां पे विश्वास करके अपने घर का हिस्सा आपको बना लोगे? बस तो आप ही निर्णय कर लो पहले। Who will do it? वो कहावत है ना, हु बेल्स द कैट। आज विश्वास कौन कौन पे करेगा? सबसे पहले तो कोई नया अपरिचित व्यक्ति आ गया, वहां में सबसे पहले तो ये संदेह हो जाएगा कि ये कोई नया षड्यंत्र तो नहीं आया, ये कोई नई लफड़ेबाजी तो नहीं शुरू हो गई। ये युग में पदे पदे कॉम्प्लिकेशन है। आज सगे भाई को, सगी बहन को, सगे काका चाचा ताऊ मामा को अगर कोई प्रसंग आ जाए तो अपन घर में पहले कॉन्फ्रेंस करें कि आपने क्या सुधी जવું, क्या सुधी सहयोग आपको, અને પહેલું એ બધું આપણે નક્કી થઈ જાય પછી હસતા મોડે કે આ આપણે આ રીતે ના કરીને આમ કરીએ તો वो सब मीन्स एंड वेज आप लोगों के पास बड़े पॉलिश्ड है। गुजराते ये બધું વ્યવહાર એટલો બધો પોલિશ્ડ કરી રાખ્યું છે કે ક્યાંથી વળાંક લેવું, ક્યાં ડાયવર્ઝન આપવું, ક્યાં તિલક કરી દેવું, ક્યાંથી છટકી જવું, ક્યાં બચી જવું, ક્યાં જતા રહેવું, ક્યાં અંડરહેન્ડ ડીલ કરી લેવી, એ બધામાં आप दो तो गुजरात को मैं बिल्कुल केशर को तिलक करूं। एवरीथिंग इज देयर। या स्थिति में मैंने अभी अपनी पंडित जी की बच्ची को, हमारी आरती को मैंने अभी कही, मैंने कहा बेटा सबसे बड़ा पुष्टि मार्ग को दुर्भाग्य ये है कि यहाँ में आज जो वर्तमान जो सेवक समूह है वो सारा का सारा व्यापारी है। ये सबसे बड़ा पुष्टि मार्ग को दुर्भाग्य और पुष्टि मार्ग की दुर्घटना है। एक समय ऐसा होता या मार्ग के प्रारंभ में कि जब यहाँ में ब्राह्मणन की बहुतायत थी, क्षत्रिय की बहुत, मैं ये वर्ण की बात जाति भेद से नहीं कर रहे हूं, पर कहीं इनहेरेंट जो क्वालिटीज है उनके लिए बात कर रहे हो। तो जो मेरिट्स आती, तो एक युग आता जब यहाँ में ब्राह्मणन की बहुतायत है, एक युग आता जब यहाँ में क्षत्रिय की बहुतायत है, और कहीं वैश्य इत्यादि को समझ को कहीं कहीं संतुलन आता। आज 98% वैश्य है हमें, और वो भी बिजनेस कम्युनिटी है। जो धंधा करने वाला जो व्यापारी वर्ग है, वो व्यापारी वर्ग दो वस्तु जाने जीवन में, आपको तीसरी बात याद नहीं है, लाभ और हानि। तो आपको तीसरी बात ध्यान नहीं, वो ग्रंथ क्या पढ़े? जब आदमी को बैलेंस शीट पढ़ने से टाइम नहीं मिल रहा है, जब आदमी को बैलेंस शीट बनाने से टाइम नहीं मिल रहा है, तो तुम्हारी ग्रंथ क्या पढ़े? कौन प्रयास करे? मैं कोई को मान अपमान नहीं करना चाह रही हूँ, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं बच्ची को अभी कही, मैंने बेटा कहां पर स्कोप कहां? तो मैं प्रश्न आपसे कह रहा हूं, आज यह परिस्थिति में ये विकराल, इतनी विकराल स्थिति है कि आज नया आदमी कोई भटकता हुआ अपने पास भी आ जाएगा ना, तो पहले तो अपन 2 साल तो यहाँ में लगावे कहीं के राम नामी दुपट्टा ओढ़ के अपन को उल्लू तो नहीं बना रहे होंगे। और ये शक्यता है, यहाँ की बहुत बड़ी शक्यता है। मैं अपनी बात आपको कहूं तो मैंने जीवन में ऐसे 10-20 धोखा खाए होंगे, एक तो नहीं 10-20। यानी मैंने यह बोर्ड लगा दिया तो कि सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। ये बोर्ड मैंने यानी लगा दिया। तो या तो करेगा कौन? अगर अपन केवल विचार के स्तर पे, फिलोसॉफी के लेवल पे आपको डिसाइड भी कर लेंगे, तो बाकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या? तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो घनश्याम भाई केवल एक है, गृहस्थत्व स्वधर्म, क्या के अलावा कोई उपचार नहीं। और यासु ज्यादा सेफ और साउंड वर्तमान कलिकाल में, वर्तमान युग में कोई रास्ता नहीं। 500 वर्ष पहले भी कलयुग है तो घनश्याम भाई, पर अपन अपनी आज के समय की अनुभव की दृष्टि से जब देखेंगे ना, तो अपन ने 500 वर्ष नहीं 100 वर्ष पहला नो समय सतयुग नो लागशे। विचार लीजिए। या का मतलब है बाह्य सेवा। क्या है आपको चार्ट? नहीं आया दूसरा? तीसरा को तो वापस कही मैंने कि चार तो चौथा नहीं देना तो वहां पर ले लो। क्या मैं ये अभी एक रिचुअलिज्म एक रात को आप वापस करो, अभी क्या बहुत टाइम को 3 नंबर को फटाफट नहीं कर
पासू आपको बिल्कुल सीधो खबर पड़ जाएगी। तुम्हारा सेट तुम्हारा रखो, तुम्हारा देने की जरूरत नहीं। एक पंच पकड़ा दे, 4-5 सब पीछे देखते रहो, या चार्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ आप। ये जो वाक्य है ये बाह्य सेवा को है, यानी गृह सेवा को। और तीर्थ पर्यटन श्रेष्ठम, ये वो है जो अजात व्यसन, यानी जात व्यसन जो है व्यावृत्त में, जो जात व्यसन है, जो ग्रह त्याग कर दे रहे हो, ये वो पद्धति है। वो दृढ़ बीज भाव वाला तो अलग है, वो तो है ही पहला, वो ये दोनों एक है, ठीक है। और अथवा सर्वदा शास्त्र भागवत आधारा, वो 5वें नंबर, वो अधिकारी में जो 5वीं संख्या लिखी मैंने कही, वो 5वें नंबर, ठीक है। अब फाइनली या तीसरे चार्ट पे से अपन ने एक बात समझी कि एक तो अपने अधिकारिता को निर्णय करना चाहिए बहुत ईमानदारी से, वेदर हमें भक्ति मार्ग पे चलने को हमारा स्वभाव है कि नहीं, या तो स्वयं अपने आप में एक आत्मविश्लेषण करके, सेल्फ एनालिसिस करके थोड़ा अपन निश्चय बहुत ऑनेस्टली करना चाहिए। अपन सेल्फ एनालिसिस करने में अगर असमर्थ है कहीं, तो अपन को योग्य गुरु स्थान पे जाके और वहां बैठ करके और अपने जो कुछ भी मन की अवस्था है वो सब रख के, और जैसे अपन एक मनोचिकित्सक के पास जाके अपने मन को विश्लेषण करा में, ऐसे कोई भी अपना जो गुरु स्थान, योग्य गुरु स्थान है, वहां जाके या कोई योग्य महापुरुष के संग बैठ के अपन को अपनी सारी परिस्थिति को कह के और अपना आत्म विश्लेषण करके और अपने आत्म विश्लेषण को एक फाइनल अपन को एक स्वरूप समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले अपनों स्वयं को आत्माधिकार अपन को निर्धार करना चाहिए। वाकई अगर कोई भी सेवा, भक्ति मार्ग या प्रपत्ति मार्ग, कोई भी मार्ग पे चल लो, अपने लिए सफलता को कोई कारण नहीं बनेगा। और दूसरी बात यह है कि वह अपनी अधिकारिता को निर्णय करके श्री महाप्रभु ने ज्या प्रकार से गुरु के लक्षण बताए हैं, ऐसे योग्य गुरु के गुरु स्थान के शरण में जाना चाहिए। और ऐसे योग्य गुरु स्थान पे जाके अपन को अपने मार्ग की दीक्षा और मार्ग को आगे को सारा प्रकार समझना चाहिए। क्या कोई ये सार है? चौथु का है क्या? तो त्रण अच्छे ना, चौथु क्या है? ભગવતીના કોઈ પણ ભગવત ભક્તના ઘરનો એ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ થઈ ગયા। કોઈ પણ ભગવત ભક્તના ઘરમાં જઈને એના ઘરનો અંગભૂત બનીને અને એના ઘરમાં એના ઠાકોરજીની એની સાથે રહીને અને ઠાકોરજીની સેવા કરવાની। આ ઘર સેવા પણ જાણે એ પોતાના ઘરમાં ન કરી શક્યો, પણ કોઈ પણ બીજા ભક્તના ઘરમાં જઈને અને એના ઘરનો અંગ બનીને એ એના પરિવારનો જ અંગ બની જાય અને પરિવારનો અંગ બનીને એની સાથે રહીને સેવા કરે। એટલે यानी ये दो बातों को निर्धार अपन को कर लेना चाहिए, अपनी अधिकारिता और अपने अधिकारिता के बाद अपने गुरु स्थान को निर्णय, ये दोनों परम आवश्यक है। और या मैं एक व्यवस्था और समझा दूं, अगर हमारे दुर्भाग्यवश या भगवत इच्छावश हमारे गुरु स्थान पे कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, ऐसी स्थिति में गुरु स्थान और गुरु हमारे लिए हमेशा हमारे मूल पुरुष ही रहेंगे। उनको स्वरूप नित्य है और वो साक्षात वस्तु तक कृष्ण एवं है, सप्त आचार्य तक। तो हमको अपने वर्तमान परिस्थिति में हमारे गुरु स्थान की वर्तमान स्थिति पे हमको अपना चित्त बिगाड़े बगैर
अपने मूल पुरुष में आस्था रखते भय और अपने घर में रह के या कोई सुयोग्य सुपठित जो आचार्य स्थान हो अन्य घर को भी वह सुपठित आचार्य स्थान सुहक्कु शिक्षा जो आज लगभग अशक्य है। शायद एक आध दो स्थल है आज की वर्तमान परिस्थिति में, मैं बताऊं तो शायद दो एक घर ऐसे हैं आज श्री महाप्रभु के वंशजन में कि जहां सच्चाई और श्री महाप्रभु के सिद्धांत को की व्यवस्था चल रही है। बाकी सब जगह जो कुछ भी है भगवत इच्छा से जो है वो ठीक है जो है। तो ऐसे कोई भी स्थान पे सु अपन को या कोई अच्छो वैष्णव ऐसा हो भगवत भक्त के जो जाकू अच्छो श्री महाप्रभु की वाणी को ज्ञान होए, पर ये बहुत संदिग्ध अवस्था है क्योंकि प्रायः मैंने ये देखे हुए आज के युग में कि जिन वैष्णव को थोड़ा भी ज्ञान हो जाए महाप्रभु की वाणी को वो खुद महंत बन जाए और ऐसे महंत बन के सब प्रकार के फिर वो दुराचार करने लगे। एक प्रकार का दुराचार सभी प्रकार के दूषण उनमें आवे और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे या बगल की चार बात बगल नजर में है, मैं बहुत सारे लोगों को बता सकूं, वो अपना विषय नहीं है बात की चर्चा करना, लेकिन ये भी एक खतरा है। लेकिन इन सारे खतरान के बावजूद जो परिस्थिति है सो है अपन को कोई रास्ता ये निकालना है कि अगर हमारे गुरु स्थान पे कोई योग्य व्यक्ति नहीं है तो हम अपने मूल पुरुष में अपनी आस्था को सुरक्षित रखते भय वहां उनके चरणारविंद में अपनी आस्था को समर्पित करके और कोई भी प्रकार से श्री महाप्रभु की वाणी को समझने को कोई रास्ता ढूंढे और श्री महाप्रभु की वाणी को रास्ता समझ के अपने घर में रह के अपने मूल पुरुष में अपनी आस्था बनाए रख के अपनी भक्ति या शरणागति को निर्वाह करते रहे। लेकिन कोई भी अयोग्य व्यक्ति को आदेश या वह की आज्ञा या वह की बात मानने को कोई प्रश्न है ही नहीं। ऐसा करने में वो तो गड्ढे में जाएगा ही व्यक्ति, पर अपन भी वह के साथ अंधे बन के गड्ढे में गिरे। और याद ये श्री पुरुषोत्तम की आज्ञा करें कि उभावा के पते का ऐसे अंधे गुरु के भी कहवाते भाई गुरु के पीछे चल के तथा कथित गुरु के पीछे चल के जो शिष्य है वो भी अंधे बन करके अंत में खड्डा में गिरे। कितनी सावचेती बहुत स्पष्टता से रखनी चाहिए या चार्ट को ये निर्णय है। अब ये बात क्लियर हो गई हो तो अपन आगे बढ़े। पहले क्या है मास्टर स्कीम है वहां के आधार पर सब चाहिए। दे दो पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों चार्ट पकड़ा चल दो तो दे चुके ना तुम। हाँ तो तीन दो पहला तीसरा और पहला दूसरा चौथा दे दो। वल्लभ मत अपन ने देख लिया, अनुबंध चतुष्टय देख लिया, अपन ने प्रमाण